Hello students, now we will discuss numericals of chapter heat. First of all, we will discuss numericals based on latent heat. For this we have formula Q equals ml. L is latent heat. Now question is, calculate the specific latent heat of a substance if 8000 joule of heat is required for melting 25 gram of substance. Students, in this question is calculate specific latent heat of a substance. It means we have to find the value of L. Now, if 8000 joule of heat is required for melting 25 gram of substance, मतलब ये कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो 25 ग्राम अमाउंट में है. अब इसको हीट किया जा रहा है. हीट करने के टाइम इसको जो एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो है 8000 जूल. तो 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए 8000 जूल हीट की रिक्वायरमेंट है. तो हमको फाइंड करना है कि इसको मेल्ट होने के लिए जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा. फॉर्मूला Q equals ml and we have the value of amount of heat 8000. Okay, this is the value of Q and 25 gram amount of substance and this is the value of M. Okay, and we have to find the value of L. Now using formula Q equals ml, L equals Q by M. Put the value of Q 8000 and divided by 25 gram. Now the value of amount of heat is in SI system. जो जूल है वो क्या है, SI सिस्टम है. अमाउंट ऑफ हीट का जो यूनिट होगा वो SI सिस्टम में दिया हुआ है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो वो ग्राम में दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा. देन डिवाइडेड बाई 1000. नाउ वी हैव 8000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25 जूल पर किलोग्राम. ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी हैव L इक्वल्स 8000 इंटू 40. 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8000 बाई 40. देन वी हैव 3 to 4 times 0 जूल पर किलोग्राम. ओके, 3,20,000 जूल पर किलोग्राम. दिस इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट. नाउ इसको हम चाहेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 320 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम. सो यूजिंग फार्मूला Q equals ml we can calculate the value of specific latent heat of substance by L equals Q by M. Now next question, calculate the energy required to melt 2 kilogram of ice given specific latent heat of fusion of ice is 336 into 10⁻³ जूल पर किलोग्राम. मतलब इस क्वेश्चन में हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको फाइंड करना होगा. अगर 2 किलोग्राम ऑफ आइस को मेल्ट होना है तो इसका मतलब है कि 2 किलोग्राम इज मास ऑफ ice. This is the value of M. Now 336 into 10⁻³ जूल पर किलोग्राम. This is specific latent heat. Okay, means this is the value of
this is the value of L. Okay, so using formula Q equals ml, we can calculate the value of energy required to melt ice. Okay, now put the value of M. Value of M is 2 kilogram. Okay, and the value of L is 336 into 10 to the power 3 joule per kilogram. So after solving, we have Q equals 2 into 336 into 10 to the power 3 joule per kilogram. Now kilogram cancel. Now we have 2 into 336 into 10 to the power 3 joule, and after solving we have 672 into 10 to the power 3 joule. This is energy required to melt 25 gram of ice. Now answer is 672 into 10 to the power 3 जूल. इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 to 3 times 0. ओके, 7,72,000 joule. This is energy required to melt 2 kilogram of ice. So both numerical is based on formula Q equals ml. Now we will discuss solved example of this chapter, and question is 1000 gram of water at 60 degrees mixed with 5000 gram of water at 40 degree. मतलब हमारे पास दो कंटेनर हैं. एक कंटेनर में 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम वाटर दिया हुआ है at 60 degree centigrade. Okay, now in other container water is at 40 degree centigrade. Okay, and amount of water 500 gram means we can write 1/2 किलोग्राम. ओके, मतलब हमारे पास एक कंटेनर में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर दिया हुआ है 1000 ग्राम का. ठीक है, अमाउंट है वाटर का कितना 1000 ग्राम. मतलब ये कि 1 kg वाटर दिया हुआ है एट 60 डिग्री. इन अदर एट 40 डिग्री अमाउंट ऑफ वाटर इज 500 ग्राम, मतलब 1/2 किलोग्राम, हाफ kg. अब इसको मिक्स कर रहे हैं. ओके, एक अदर कंटेनर में इन दोनों वाटर को मिक्स करेंगे. नाउ द टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्स्ड वाटर विल बी कैपिटल T. जो इस मिक्स्ड वाटर का दोनों को मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो T होगा. ओके, कंसीडर T डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मीन्स heat lost by hot body equals heat gained by cold body. ओके, अब ये जो T दिया हुआ, this T will be lies between 40 degree centigrade to 60 degree centigrade. ओके, ये जो टेम्परेचर ऑफ मिक्स्ड वाटर होगा वो हॉट वाटर से कम ही होगा, एंड जो कोल्ड वाटर होगा उससे ज़्यादा होगा. देखते हैं. नाउ सपोज दैट द फाइनल टेम्परेचर इज T. नाउ दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल्स हीट गेन बाय कोल्ड वाटर. नाउ amount of heat can be calculated by formula Q equals mc del theta. M is mass of body, this C is specific heat capacity, and delta theta means
डिफरेंस इन टेम्परेचर, ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब ये कि जो हॉट बॉडी होगा, हॉट वाटर होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, लॉस होगा उसमें, और जो कोल्ड वाटर होगा उसमें टेम्परेचर गेन होगा, ओके। नाउ यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल्स हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, वी हैव फार्मूला फॉर हीट अमाउंट ऑफ हीट mc del theta, m1 c1 delta theta 1, this is amount of heat lost by hot water, and m2 c2 delta theta, this is amount of heat gained by cold water। सीधी सी बात है, जो ठंडा वाटर होगा, जो कोल्ड वाटर होगा उसमें टेम्परेचर गेन करेगा, जो हॉट वाटर होगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर होगा उसमें हीट लॉस होगा, ठीक है। अब वो कितना होगा? नाउ मास इज m1, द वैल्यू ऑफ m1 इज 1000, ओके। इसको हम चाहे तो डायरेक्टली केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर m1 की वैल्यू पुट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज 1 kg। नाउ द वैल्यू ऑफ c फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर विल बी 4000, okay, this will be 4000, okay। Actually the exact value will be 4186, okay, but we can also write 4200 in both case here water, okay। अगर हम देखें दोनों केस में, दोनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस था, वाटर ही था, तो इसलिए दोनों तरफ C1 और C2 की वैल्यू सेम होगा। बाद में हम उसको चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ओके। ये 4200 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1000 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर कोल्ड वाटर 500 इज डिवाइडेड बाई 1000, ओके। 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लाइन, ओके, देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज 60 माइनस टी एंड व्हाट इज टी माइनस 40? एक्चुअली हॉट वाटर लॉस टेम्परेचर एंड कोल्ड बॉडी लॉस गेन टेम्परेचर। अगर हम बात करें एक कंटेनर में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, तो ये कन्फर्म है कि जो टेम्परेचर ऑफ मिक्स्ड वाटर होने वाला है वो कोल्ड वाटर वाले टेम्परेचर से ज़्यादा होगा और हॉट वाटर वाले टेम्परेचर से कम होगा। मीन्स टी इज़ लेस देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन 40 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें हॉट वाटर के केस में, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसमें लॉस होने वाला जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 60 माइनस टी। बट इन केस ऑफ कोल्ड वाटर, अब ये जो टी है वो क्या होगा, प्रीवियस टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। प्रीवियस टेम्परेचर जो कोल्ड वाटर का था वो कितना था, 40 डिग्री था। इसका मतलब कि अभी जो न्यू टेम्परेचर टी है ये क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लेस देन 40। तो इसी वैल्यू को यहाँ यूज करते हैं और इस हॉट वाटर वाले को हम यहाँ यूज करते हैं, ओके। 60 माइनस टी। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज 1, एंड 500 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज 1/2, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। नाउ 4200 will be cancelled, then we can also write 1 into 60 minus t equals 1/2 t minus 40. Then after solving we have After solving we have 60 minus t equals 1/2 t minus 40. Then 2 will be shift in other side. Then we have 60 minus t into 2.
then we can write 120 minus 2t, and this will be t minus 40. okay, मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको भी लिख सकते हैं t माइनस 40. नाउ ये 2 माइनस टी दूसरे साइड राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 2t. देन वी हैव 3t, एंड 120 की तरफ जाएगा ये 40 वाला, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 40. देन वी हैव 160. नाउ 160 equals 3t. Then we can calculate the value of t, 160 by 3, and answer will be 53.3. So this numerical is based on principle of calorimetry. Okay, thank you.